माँ बाप कहीं जाते नहीं, बस ऐसा लगता है कि वो चले गए, पर वो जाते नहीं। कभी वो आपके होंठों से मुस्कुराते, तो कभी वो आपके चलने के अंदाज में झलक जाते हैं, कभी वो आपके बेटे की नाक में दिख जाते हैं, और कभी वो आपके बेटी की आंखों में छुप जाते हैं। एक बहुत लंबी लड़ी है, बहुत पुरानी, जिसकी आप एक कड़ी। I borrowed these lines from Amitabh Bachchan's cement commercial since it so aptly describes the occasion of Shraddh. Shraddh comes from the word Shraddha, means gratitude. So this is the time period which is designated as per our scriptures when we show gratitude to our forefathers. हम अपने ancestors को अपना gratitude show करते हैं for our entire being, for our existence. If you remember in our earlier videos, we've spoken about Chaturmas. So Chaturmas के अश्विन month की पूर्णिमा से ये टाइम फ्रेम शुरू होता है, and it lasts for 15 or 16 days depending on the year. So इस मंथ में ऐसे कहते हैं कि यमराज जो है, who is the lord of death, he allows our pitra to descend from pitralok to earth. तो आपके घर आपके पितर आते हैं in one of the other forms for these 15 days. So जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हैं? Usually we are on our best behavior, right? We clean our house, we decorate our house. हम अच्छे तरह से रेडी होते हैं, हम उनके फेवरेट खाना होता है, हम वो बनाते हैं और हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहते हैं. So this is the period when your ancestors are coming to see you and you have to put on your best feet forward. तो आपको अपना अच्छा बिहेवियर शो करना है. So even जैसे अगर कोई गेस्ट आपके घर आते हैं and you're fighting, so with your sibling or with your husband, so what do? You just pause it, right? You say we'll resume post they go. So अगर आप ऐसा करते भी हैं, आप लड़ भी रहे हैं, so this is the period where you should not fight because you don't want them to carry that impressions कि ये मेरे बच्चे ये आपस में लड़ रहे हैं, ये ऐसा ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर है इनका. So you have to be good in this period. You know, I don't know why, but some people have a very negative connotation of Shraddh. How can this period be negative? You're remembering your forefathers, and how can this be anyways associated with negative? हम लोग श्राद्ध का जो पिवटल फीलिंग है, दैट इज ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज ऑफ थैंकफुलनेस. आप उनको थैंक्स कह रहे हो फॉर गिविंग यू लाइफ. आपके लिए उन्होंने इतना कुछ किया है एंड इस पीरियड में यू नीड टू प्रे टू देम बिकॉज हम लोग ये कहते हैं कि वो अभी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले गए हैं. जो भी उनके पास पावर्स हैं, इट इज बिकॉज दैट इट मैग्निफाइज. सो इस पीरियड में देयर इज लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज दैट हैपेंस बिटवीन द टू रेल्म्स. सो हम लोग ये कहते हैं कि हम उनको अपनी प्रेयर्स भेज रहे हैं इन केस दे आर इन अ प्लेस वेयर दे आर नॉट एबल टू गेट आउट of that place and it's not a lovely place. We want to send them prayers that all our energies are with you within a period of 7 generations. क्योंकि जो 7 generations में हम genetic material कहते हैं, it remains more or less similar. Other than the mutation that can happen at any point of time, the genetic material during the 7 generation period वो more or less similar रहता है. इसीलिए क्या होता है कि जिस इज सेंट्रल जनरेशन विच इज डूइंग, इफ इसको बेस मान के चला जाए तो आप अपने प्रोसीडिंग 3 जनरेशन का श्राद्ध करते हैं और आने वाली 3 जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं. So neurobiologically in other ways you are so attuned because of the genetic material also that your prayers and this exchange, it happens very effectively. एंड स्पेशली दिस 15-day पीरियड. नाउ ये 15-day पीरियड जो है ये बनाया गया है बिकॉज द अलाइनमेंट इज लाइक दैट. इट्स सेड दैट इट्स द बेस्ट. जैसे हमने अभी बात की, पूर्णिमा से ये शुरू होता है या भद्रपद, डिपेंडिंग ऑन द टाइम साइकिल रेफरेंस कैलेंडर जो आप रेफर कर रहे हैं. तो ये पीरियड में और ये जो अमावस्या पे एंड होता है, हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं
Or if you're not somebody like my sister, she does it daily. It's part of a daily ritual. I can't do it. So to each its own. So it's इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट इट्स फॉर योर कन्वीनियंस, यू नो. एक साइक्लिकल नेचर है और इस हिसाब से इट्स जस्ट ए गुड रिमाइंडर फॉर अस कि ओके दिस इज द पीरियड व्हेन यू नो ये सब हमको करना है, हमको ग्रैटिट्यूड शो करना है. सो देयर नॉट जस्ट द ग्रैटिट्यूड. आई वुड से दैट देयर आर 4 pivotal important lessons in here. One is the gratitude, and the second one is forgiveness. Psychologically also it's been proved that, you know, there's a lot of guilt feeling. There's a lot of guilt feeling that is associated with dead. What happens is that कि बहुत सारी unfulfilled desires होती हैं अक्सर जो डिपार्टेड होते हैं उनकी, और जो आइदर पूरी नहीं हो पाती हैं या उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन वी नीड टू फॉरगिव कि जो हुआ सो हुआ, एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. जैसे कि आज हमने अपने दादाजी का श्राद्ध किया है, और माय दादाजी इज वेरी डियर टू मी, एंड ही इज सच अ लवली सोल. एंड it's not, I'm saying just because he's my Dadaji, he's touched so many lives. Like, he's a great influence on me, and he wanted me to become a doctor. और मैं डॉक्टर नहीं बन पाई because of any reason. And usually क्या होता है, ऐसा सबके साथ होता है. There is something that you want और वो नहीं हो पाता है. So उससे एक गिल्ट एसोसिएट होता है. सो दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू निगेट दैट गिल्ट. क्या होता है कि अक्सर एक फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस ऑफ लव हमारे अंदर आ जाती है जब हम कुछ जो हमसे एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं कर पाते हैं, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ मिजरेबल फीलिंग्स इन आवर लाइफ. तो वो उसको हमको खत्म करना है. वी नीड टू be kind to ourselves, and once if we are kind to ourselves only, then we can be kind to others. So this is the time frame where we need to understand that there are limitations, and we need to forgive our forefathers also. उन्होंने अपनी capacity में जो था वो सब किया हमारे लिए. Intentionally, unintentionally, if they have hurt us, we need to forgive them. And it's not just for our forefathers, even for our लिविंग पेरेंट्स, लिविंग बड़े बुजुर्ग, उनसे भी कई बार हमको हर्ट हो जाता है, हम उनको हर्ट कर देते हैं. वी नीड टू forgive ourselves, we need to forgive them, and we need to move on. That is the right way how we need to see Shraddh. Third thing, that from forgiveness we can see that no कि ये क्या गलत हुआ और क्या गलत नहीं करना है, क्या हमको नहीं करना है. इट बिकम्स समटाइम्स इट्स वेरी क्लियर टू अस कि ये चीज इज देयर इन मी, राइट. बिकॉज एक सीड है, हम उस सीड में से वही ट्री निकलता है, ट्री में से वो फ्रूट आता है, और वापस उस सीड में ही उसका सारा इम्प्रेशन और इम्प्रिंट रहता है. So we need to identify कि ये सब अच्छा था. We are saluting and celebrating the positive values that a person stood for, but we can clearly identify that these are the negatives, and we can vouch, we can take a प्रण या संकल्प, या हम छोटा सा अपने अंदर एक फीलिंग ला सकते हैं कि ये नेगेटिव एरियाज हैं जो हमको नहीं रिपीट करने हैं. We don't need to be exact replica of our forefathers, because there were different constraints, there were बहुत सारी चीजें different थी उस टाइम पे, and we obviously if we are replica of them, we are a life wasted, right? We've been given an opportunity of life, so we don't want our dead to be living through us. We clearly need to identify that these are the areas where we don't need to be like our forefathers, and these are the areas where we need to be like them. So this demarcation and identification is very, very important, and we need to make it contemporary in our today's society. Fourth point is that life is so cyclical in nature, and Shraddh is a reminder of that.
जब हम तर्पण करते हैं, तर्पण में हम वाटर डालते हैं एक तांबा या कांसे के बर्तन में, विच इज अगेन सेड टू बी लाइक वाटर, तांबा, कांसा, दे ऑल आर गुड, दे आर वेरी वंडरफुल कैरियर ऑफ एनर्जी, सो दैट इज वाई दे आर यूज्ड। सो जो हम तर्पण करते हैं, तर्पण का मतलब है तृप्त करना किसी को, तृप्त, पूरा आप किसी की इच्छा को, डिजायर को तृप्त कर रहे हैं। तो जब आप तर्पण करते हैं तो अक्सर हम ये पानी का यूज करते हैं और हम इसमें तांबा और कांसा, और हम इसमें काले तिल डालते हैं। नाउ काले तिल कैन यूजली इट्स सेड कि द स्टोरी एसोसिएटेड इज कि ये विष्णु जी के पसीने से ओरिजिनेट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो पायस, इट्स सो गुड, एंड दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड इन द तर्पण सेरेमनी। द अदर थिंग दैट पीपल से इज दैट since it's a rich energy source, but it can also be seen as that जब कोई रहा ही नहीं, somebody who's not with us, उनकी अगर कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी हैं, तो हम उनको ये कह रहे हैं कि वो तिल जितनी है। इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट्स एज उसका कुछ मतलब कितना कितना कर होता है काला तिल, छोटा इतना कर, तो मतलब वो सभी इच्छाएं भी इतनी तुच्छ हैं, लेकिन हम वो आपको, अगर कुछ अनफिल्ड आपकी डिजायर्स हैं, हम आपको वो एनर्जीज और प्रेयर्स साथ में भेज रहे हैं कि वो आपकी कंप्लीट हो जाएं, टू आवर डिपार्टेड, टू आवर एंसेस्टर्स। एंड बट इट हैज अ वेरी डीपर मीनिंग कि ये जो साइक्लिकल डेथ है एंड लाइफ है, अगर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, सो बैड डीड्स की तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है ना। सो वी विल ऑल डू गुड डीड्स, राइट? एंड गुड डीड इज पार्ट ऑफ आवर सेरेमनीज, लाइक हम लोग गाय को, कुत्ते को, चींटी को, डॉग को, पुअर लोगों को ब्राह्मण भोज कराते हैं। हम लोग सब अच्छे काम करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दीज आर ऑल गुड डीड्स एसोसिएटेड। हम लोग इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, हम एनिमल्स को दे रहे हैं, हम बर्ड्स को दे रहे हैं, हम लोग गांव माता को दे रहे हैं, जो मतलब जिसमें उनमें तो सभी देवी देवताओं का वास है। सो बाकी crows and dogs all have associated story. I'm sure you all know and must have heard of them. But this is like giving. You become so giving in case this realization struck that life and death are just so cyclical in nature, and life is ephemeral. हमको भी कल जाना है. So I guess this is how we sum up Shraddh. एंड जस्ट वन थिंग कि तर्पण और श्राद्ध जो है वो लेडीज नहीं करते हैं, ऐसा भी एक पॉपुलर बिलीफ है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। हमारे कल्चरल रेफरेंसेस में भी बहुत जगह है जहां पे ये रेफर किया गया है। सीता मैया ने दशरथ जी का श्राद्ध पिंडदान किया था। तो आई एम श्योर इफ यू गो एंड फाइंड आउट ऑल ऑफ दैट, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बट दीज आर ऑल्सो सम रूडिमेंट्री थिंकिंग जो अटैच है इसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अ प्रेयर, इट इज अ ब्लेसिंग टाइम, इट्स अ पॉजिटिव टाइम। एंड हम लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं इसमें ये नहीं करते, इसमें वो नहीं करते, इस टाइम पे ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यू डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। This time is designated particularly for remembering your ancestors, your departed ancestors. It can be pleasing your live parents, Dadaji, Dadiji, Nanaji, Naniji. Hope you like this video. I'm Monica Sharma, and in case you like this video, I would request you to please subscribe and share this information with your friends also. And take care. Bye-bye.